Good morning. Today we are going to discuss on the next part of respiration topic, glycolysis. In the aerobic respiration and anaerobic respiration, common process occur. First process of aerobic respiration and anaerobic respiration is common. That is glycolysis. Glycolysis. Glycolysis is also known as a cytoplasmic reaction. Cytoplasmic respiration or cytoplasmic reaction of aerobic respiration and anaerobic reaction. Cytoplasmic reaction. Why it is known as cytoplasmic reaction? Because this process occur in the cytoplasm of the cell, not inside the mitochondria. The glycolysis process occur outside the mitochondria in the cytoplasm. And next reaction of aerobic respiration occur inside the mitochondria. Initial reaction of aerobic respiration, first process of aerobic respiration occur in the cytoplasm outside the mitochondria, hence known as cytoplasmic reaction. Glycolysis is also known as cytoplasmic reaction. Another name of glycolysis is EMP pathway. EMP pathway. EMP pathway of respiration. Why it is known as EMP? E for membrane, E for membrane, EM, BTEN, membrane, M for man hop, and P for Parnas. So these are the name of scientists. Membrane, Mera, Parnas are the name of scientists, and they work on the glycolysis and how reaction takes place on the glucose molecule in the cytoplasm at the time of breakdown process. Breakdown of glucose molecule commonly occur in the cytoplasm in the stepwise manner. Glucose molecule not suddenly broken into pyruvic acid molecule.
the number of steps are involved during the breaking of glucose molecule. And so this glucose molecule breaks into two molecules of pyruvic acid by following number of steps. And these steps studied by Emmeline, Mayer of Parnas. Hence, the glycolysis is known as EMP pathway. Emmeline, Mayer of pathways. Now here what happened? During glycolysis, commonly two steps are involved. Glycolysis, two steps are involved in the glycolysis. Here, preparatory phase. Preparatory phase and cleavage. Preparatory phase and cleavage. So here what happened? During glycolysis, first preparation is necessary by following number of steps, initial steps. हमें पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल किससे बना है? डू यू नो किससे बना है? किससे बना है? ये तो रिडक्शन प्रोसेस हो गई, लेकिन ग्लूकोज बनाते समय कौन से दो मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए? तीन कार्बन कंपाउंड दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो गया। कौन से दो मॉलिक्यूल है? फोटोसिंथेसिस में देखा है, केल्विन साइकिल में कौन से 3-PGAL, 3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate. These two molecules of 3 carbon compound attached to each other. ये दो फ्रेंड है, ये दो फ्रेंड जब एक होते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होता है। केल्विन साइकिल में हमें देखा है कि 3-PGAL, one of the 3-PGAL and 1-dihydroxyacetone phosphate react to each other and form glucose molecule by following number of steps. But these two friends as remain together, तो इसको अलग करना है तो प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। दो फ्रेंड एक जगह पे रहते हैं हमेशा एक जगह पे रहते हैं, तो दोनों में झगड़ा लगाने का है तो कैसा करेंगे? उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। किसी को तो कान में जाके बोलने का, अकेला बुला के, उसके सामने अकेला बुला के बोलने का, क्या है शादी, गौस अच्छा नहीं है कान में, ऐसा बोले तो क्या होगा? शादी के मन में कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी और उसके बारे में सोचते रहेगा। राम लक्ष्मण हमेशा दोनों एक जगह पे रहते थे और दोनों में झगड़ा लगाने का तो कुछ तो कान में बताना चाहिए, है ना? राम और श्याम में झगड़ा लगाना है तो राम के कान में बोलने का, कुछ तो बोलने का श्याम के बारे में, और एक दिन में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, एक दिन में नहीं होता। तो उसको प्रिपरेशन, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, है ना? एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, तब दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी।
तो यहाँ फ्रेंडशिप है, किसकी है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में PgAl एंड DHAP, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों मिलके ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो गया है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल में। तो इसको अलग करने की तैयारी करने का है उस पहले स्टेप में, प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज। दोनों को अलग करने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा और उसका सेपरेशन करना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। और इस दोनों को अलग करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप रहेगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड पे ऑफ। पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज बोले तो कुछ तो मिलता है। दोनों में झगड़ा लगाने के बाद जिसने झगड़ा लगाया उसको कुछ तो मिलता है ना? दोनों के अंदर झगड़ा लगाने के बाद कुछ तो मिलता है। क्या मिलेगा? दोनों के पास से कुछ तो पैसा निकालेंगे। वो पैसा बोले तो पे आप बोले तो क्या होता है? ATP तैयार होती है, कुछ तो तैयार होता है। सो दिस आर मेन टू फेजेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस and studied by Emmanuel Mayer of Parnas. Now, first of all, you should know what is glycolysis. 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 Breakdown of glucose by following number of steps. Number of steps in presence of enzymes into two molecule of pyruvic acids. Molecules of pyruvic acid is known as glycolysis. Breakdown of glucose by following number of steps in presence of enzyme into two molecules of pyruvic acid is known as glycolysis. Is known as glycolysis. Breakdown of glucose molecule into two molecule of pyruvic acid in presence of number of enzymes by following number of steps is known as glycolysis. लिसिस बोले तो तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना है और क्या बनाना है? पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड 3 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। So this glucose molecule broken down into
2 molecule of pyruvic acid in the cytoplasm in the presence of number of enzymes. 10 types of enzymes are involved in the breaking of glucose molecule into 2 molecule of pyruvic acid. तो पहले क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज. This glucose molecule is 6 carbon compound. Undergo preparation of breaking of glucose molecule. First step of the glycolysis is first phosphorylation. Here what happened? First phosphorylation. First phosphorylation, ATP converted into ADP. So here what happened? Glucose molecule unstabilized by using ATP. किसी को तोड़ना है तो कुछ तो एनर्जी खर्चा करना पड़ता है ना. किसी को जोड़ना है फिर भी एनर्जी लगानी पड़ती है. किसी को तोड़ना है तो भी एनर्जी लगानी पड़ती है शुरू में. तो फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस इन विच व्हाट हैपेंड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate. ग्लूकोज 6-phosphate. ग्लूकोज 6-phosphate बोले तो 6 कार्बन को फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. 6 कार्बन को बोले तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये 6 कार्बन. यहाँ क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th. So what happened here? The glucose undergo phosphorylation by using ATP in the presence of hexokinase. Hexokinase. In the presence of glucohexokinase enzyme, ATP utilized and glucose molecule converted into glucose 6-phosphate. This is the first process of preparatory phase of glycolysis. So here what happened? Glucose molecule, glucose 6-phosphate converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate. In the presence of isomerase enzyme. In the presence of isomerase enzyme, glucophosphoisomerase enzyme. यहाँ isomerization process है. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज. चेंज हो गया. ग्लूकोज का कन्वर्शन कहाँ हो गया? फ्रुक्टोज में हो गया. तो यहाँ क्या हो गया? चेंज हो गया. आइसोमराइजेशन प्रोसेस. स्ट्रक्चरल फार्मूला, molecular formula remains same, but structural formula change. Glucose molecule converted into fructose. So in the presence of isomerase enzyme, this process is known as isomerization. This process is known as isomerization. और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड रहेगा, है ना. तो बाद में क्या होगा? This fructose molecule again undergo phosphorylation by using ATP. Second phosphorylation. Second phosphorylation. और यहाँ
First phosphorylation. First phosphorylation, second phosphorylation in the presence of fructohexokinase enzyme. Phosphofructokinase enzyme. So here what happened? This enzyme help the addition of phosphate group. Fructohexokinase enzyme, phosphofructokinase enzyme, phosphofructokinase enzyme. And what happened here? Fructose 6-phosphate converted into 1,6-fructose डाइफॉस्फेट. बोले तो पहले कार्बन को एक फॉस्फेट अटैच हो गया, तो यहां क्या हो गया? अब ये पहले कार्बन को अटैच हो जाएगा, है ना? ये प्रोसेस, ये पहले कार्बन को, तो क्या हो जाएगा? यहां 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए, इसलिए हम क्या बोलेंगे? फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट. 2 फॉस्फेट है और ये बेचैन हो गए. दिस फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट अनस्टेबल कंपाउंड. क्यों अनस्टेबल हो गया? पहले कान में बताया था. किसके कान में? एक फ्रेंड के कान में. दूसरे फ्रेंड के बारे में एक फ्रेंड के कान में बताया, एक बाजू में, 6th बाजू में, तो उसका कान बेकार हो गया, बेचैन हो गया. दूसरे के कान में बताया, उधर का कान बेकार हो गया. अब बेचैन हो गए दोनों भी, और ये बेचैन होने के बाद फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, fructose 1,6-diphosphate is unstable compound, and this unstable compound broken down into three PGAL and DHAP, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. ये भी ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 3 कार्बन कंपाउंड है. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम, अल्डोलेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ क्लीवेज बोलते हैं इसको. इसको क्या कहेंगे? क्लीवेज. हो गए ना, 2 फ्रेंड अलग हो गए. क्लीव द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 3 PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. 3 क्या को है? ये कैसा है? 3 कार्बन है यहां इसमें. पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन को फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. ये अल्डिहाइड है और ये एसीटोन है. इसमें भी फॉस्फेट है और इसमें भी फॉस्फेट है. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और ये है 3 PGAL. तीसरे कार्बन को फॉस्फेट अटैच है एल्डिहाइड में, इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. और ये तो हमने देखा है फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होते समय ये दोनों मिलके क्या होता है. सो अप टू दिस प्रोसेस व्हाट हैपन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल. रिवर्स प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल ये दिखाई दे, है ना? अप टू दिस प्रोसेस. So this up to this process is known as preparatory phase. इसे क्या बोलेंगे? Preparatory phase. हम इसको कहेंगे preparatory phase. Now these molecules are interconvertible to each other in the presence of isomerase enzyme.
इंटर कन्वर्टेबल, ये PgAl कन्वर्टेड इनटू DHAP, DHAP में कन्वर्टेड इनटू PgAl। लेकिन अगले प्रोसेस में क्या होना जरूरी है? PgAl जरूरी है। तो these two molecules of 3-PgAl form 2 molecule, कितने? 2 molecule तैयार हो जाएंगे। ये 2 molecule तैयार हो जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड के। इट मीन्स DHAP कन्वर्टेड इनटू PgAl, 2 molecule हो गए। अब हमने देखा है इसमें क्या देखा है? केल्विन साइकिल में DHAP कन्वर्टेड फ्रॉम PgAl, ये रिवर्स प्रोसेस है। तो 2 PgAl मॉलिक्यूल तैयार हो गए और इसमें है अगली प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस in the presence of dehydrogenase enzyme। Dehydrogenase enzyme here oxidation and reduction process may takes place। Oxidation and reduction process takes place. It means here what happened? One of the coenzyme converted into NADP, nicotinamide, NAD, not NADP. In the respiration there is no P. Nicotinamide adenine diphosphate, dinucleotide, diphosphate नहीं, dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide molecule is acting as coenzyme and hydrogen released, which is utilized for reduction process of this coenzyme, NAD reduced to NADH2. After oxidation what happened? Hydrogen released in the presence of dehydrogenase enzyme glyceraldehyde dehydrogenase enzyme। यहाँ कौन सा है? सबस्ट्रेट का नाम लेना चाहिए पहले। जो भी एंजाइम है उसका पहला सबस्ट्रेट का नाम है। glyceraldehyde dehydrogenase enzyme undergo oxidation and hydrogen released, which is utilized for NADH2 and inorganic phosphate S3PO4 undergo reaction and for phosphorylation process add 1 phosphate to the first carbon। यहाँ क्या होगा? ये फॉस्फेट अटैच होगा। तो यहाँ क्या होगा? 1,3-phosphoglyceric acid, 1,3-phosphoglyceric acid। This is the 3 carbon compound। इजी है क्या? डिफिकल्टी है क्या इसमें? Can you understand? Yes sir। So here what happened? The phosphoglyceraldehyde 3-PgAl converted into 1,3-diphosphoglyceraldehyde। यहाँ क्या हो गया? डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नॉट एल्डिहाइड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कितने मॉलिक्यूल तैयार हो गए? 2 मॉलिक्यूल। ये 2 मॉलिक्यूल तैयार हो गए up to this process। Then the 3-phosphoglyceric acid, 1,3-phosphoglyceric acid, diphosphoglyceric acid
undergo dephosphorylation, a removal of phosphate group, and here payoff process taking place. payoff process बोले तो पैसे मिल रहे हैं, पैसा खर्चा हो गया वहां पे, अब पैसे मिलेंगे। अब यहाँ दो मॉलिक्यूल है तो दो फॉस्फेट मिलेंगे, एडीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। कितने हो गए? 2 दो हो गए तो such type of process occur in the presence of triose kinase enzyme। यह भी कौन से एंजाइम है? काइनेज एंजाइम। जहां एटीपी यूटिलाइज होता है और एटीपी तैयार होता है, वहां कौन सा एंजाइम होना जरूरी है? काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम, यहां भी काइनेज एंजाइम है, देखो एक्सोकाइनेज एंजाइम, फ्रुक्टोएक्सोकाइनेज एंजाइम, यहां भी काइनेज एंजाइम। अब इधर भी कौन सा एंजाइम है? काइनेज एंजाइम। ट्राइओस काइनेज एंजाइम, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, है ना? तो यहाँ काइनेज एंजाइम है। और ये क्या होगा? 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल है और ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। कितना इजी है। और बाद में क्या होगा? आइसोमराइजेशन। Here what happened? Shifting of phosphate group to the second carbon। अभी यहाँ क्या हो गया? 2-PGA। Isomerase enzyme। In the presence of isomerase enzyme, in the presence of isomerase enzyme, 2 molecule of 2-PGA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोले तो क्या हो गया? 3 कार्बन है यहाँ 3 कार्बन है, तो सेकंड कार्बन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन का सेकंड कार्बन में आ गया, है ना? शिफ्ट हो गया फॉस्फेट ग्रुप और अटैच टू द सेकंड कार्बन, and this process is known as isomerization process, right? Now here what happened? These molecule 2-PGA molecule, 2 molecules undergo dehydration in the presence of enzyme enolase and release water molecule। dehydration process हो गए, in the presence of enolase enzyme water molecule released, and what happened here? 2-PGA converted into phosphoenol pyruvic acid। In the presence of enolase enzyme water molecule released and phosphoenol pyruvic acid। कितने मोलिक्यूल है ये? 2 molecule है, 2 molecule, 3 carbon compound। And here what happened? In the last step, in the presence of kinase enzyme, phosphoenol pyruvic acid या pyruvate converted into 2 molecule of pyruvic acid, acids। These are the 3 carbon compound and 2 molecule of pyruvic acids are produced by releasing phosphate group। यहाँ phosphate group रिलीज हो गया और यहाँ क्या हो गया? phosphate group ADP converted into ATP। अब यहाँ 2 ATP तैयार हो गए, यहाँ 2 ATP तैयार हो गए, 2 ADP यूटिलाइज हो गए और 2 ADP तैयार हो गए। 2 ATP, यहाँ 2 ATP है, यहाँ 2 ADP, and it is also takes place in the presence of
काइनेज एंजाइम, ट्रायोज काइनेज एंजाइम, काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंजाइम, इसको क्या कहेंगे? पायरुवेट काइनेज एंजाइम, पायरुवेट है ना ये, पायरुवेट ट्रायोज काइनेज एंजाइम एंड फॉस्फोइनोल pyruvic acid, pyruvate converted into 2 molecule of pyruvic acid, pyruvic acid, ये pyruvic acid तैयार हो गया। अब यहाँ प्रोसेस में क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो यहाँ तक क्लीवेज प्रोसेस है और ये ऑक्सीडेशन एंड पे ऑफ प्रोसेस। यहाँ एटीपी तैयार हो गई। कितने एटीपी तैयार हो गए? 2, 4 एटीपी तैयार हो गए, है ना? यहाँ कहाँ? पे ऑफ में, पे ऑफ में, है ना? 4 एटीपी तैयार हो गए और इसमें माइनस करेंगे इस किसके? 2 एटीपी, 2 एटीपी माइनस हो गए किसमें? ये प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन में। तो गेन कितना हो गया? इज इक्वल टू 2 एटीपी, 2 एटीपी। सो such type of process occur in the glycolysis process, preparatory phase and payoff phase, preparatory phase and payoff phase, preparation and cleavage and oxidation, payoff phase. So total number of ATP produced, total number of gain of ATP are 2 in number. टोटल ATP कितने मिलेंगे? 2 ATP मिलेंगे। So ये पे प्रोसेस है। So whole process occur in the presence of enzyme. 10 types of enzymes are involved in the glycolysis process. And what happened here? Such type of molecules are produced. Here ATP utilized. Here 1 ATP और कहाँ? ये सेकंड एटीपी, यहाँ एटीपी यूटिलाइज हो गया, एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, ये यहाँ 2 यूटिलाइज हो गए, 2 ये पे एक हो गए, यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ एक है, यहाँ एक, 2 एटीपी यूटिलाइज हो गए और बाद में यहाँ तैयार हो गए, बराबर है? यहाँ तैयार हो गए 2, यहाँ 2 तैयार हो गए, है ना? यहाँ 2 तैयार हो गए और यहाँ NADH2 तैयार हो गए। कितने हो गए? 2। तो ATP produced in the glycolysis process are substrate level oxidation. Substrate level oxidative energy utilized for the synthesis of ATP in the glycolysis. कैसा है? Substrate level oxidative energy utilized for the synthesis of ATP in the glycolysis. कैसा हो गया? देखो अभी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो पहले इसको बेचैन करेंगे। बेचैन करना है तो 2 एटीपी यूटिलाइज करते हैं, यहाँ एक यूटिलाइज करते हैं, एक के कान में बताए तो अच्छा नहीं है, ये कान में बताए। बाद में ये पहली बार, ये पहला कान है, ये फर्स्ट कान है ना? फर्स्ट ईयर, हाँ ये ईयर फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है ना? ये इसके कान में बताए तो बेचैन हो गए। पहली बार इसको इस कान को 6 और दूसरी बार फर्स्ट को, ये बेचैन हो गए। और बेचैन होने के बाद ये बेचैन 1,6 फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट अनस्टेबल कंपाउंड क्लीव इनटू 3-PGAL एंड DHAP। 3-PGAL तीसरे कार्बन को अटैच हो गया और ये तीसरा कार्बन है, ये फर्स्ट प्रोसेस है और ये सेकंड। तो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं और बाद में वो रिमूव होते हैं। डीफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस करते समय
एटीपी तैयार होते हैं, तो उसको कहते हैं हम पे ऑफ फेज। इजी है, बरोबर आहे. या ठिकाणी काय झालेलं आहे, ग्लुकोज मॉलिक्युलचा ब्रेकडाऊन झाला. ग्लुकोज मॉलिक्युलचा ब्रेकडाऊन झाला. ज्या प्रोसेसमध्ये ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होतं 2 मॉलिक्युलच्या पायरुव्हिक ऍसिड मध्ये, त्याला ग्लायकोलिसिस असं म्हटलं जातं. रेस्पायरेशनच्या ज्या प्रोसेसमध्ये ग्लुकोज मॉलिक्युल चे तुकडे होऊन 2 पायरुव्हिक ऍसिड होत असतील, त्या प्रोसेसला ग्लायकोलिसिस असं म्हटलं जातं. आणि ही प्रोसेस कुठं होते, सायटोप्लाझम मध्ये होते, म्हणून याला म्हटलं जातं सायटोप्लाझ्मिक रिएक्शन. आणि ही कॉमन प्रोसेस आहे. एरोबिक रेस्पायरेशन आणि अनएरोबिक रेस्पायरेशन या दोन्हीही रेस्पायरेशन प्रोसेस मध्ये ग्लायकोलिसिस ही कॉमन आहे, सर्वसामान्य प्रोसेस आहे. आणि याच्यामध्ये काय होतं, 10 स्टेप्स इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. पहा या ठिकाणी इथे इथून इथपर्यंत 10 स्टेप्स आहेत. 10 प्रत्येक स्टेप मध्ये एक एन्झाइम वापरलेला आहे. सो इन द ग्लायकोलिसिस 10 टाइप्स ऑफ एन्झाइम्स आर इन्व्हॉल्व. एन्झाइमेटिक रिएक्शन आहे, ठीक आहे साहेब, एन्झाइमेटिक रिएक्शन है. सो 10 टाइप्स ऑफ एन्झाइम्स आर यूटिलाइज्ड इन द ग्लायकोलिसिस. हे 10 एन्झाइम वापरले गेलेले आहेत. थँक्यू.